मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जागना पड़ेगा और पवित्र आत्मा के साथ संबंधों को बनाना पड़ेगा। And I believe you have to wake up in your spirit and you have to और make मेरा a relationship. बिलीव है कि हर वो अंधकार की शक्ति जो आपकी लाइफ पे अटैक करती है, आज खुदावंद की सामर्थ से आपकी लाइफ को छोड़ के जाएगी और आप फ्री होके वापस जाएंगे। Every spirit which is bonding you in the name of Jesus, I believe tonight you're going to receive the restoration in your life. मेरा बिलीव है कि आप लोग मेरी बात को गुस्सा नहीं करेंगे। And I believe you're not going to be upset with me. क्योंकि अगर मैं आपको सच्चाई नहीं बताऊंगा तो मैं परमेश्वर के सामने गुनहगार हूं। And if I don't tell you the truth, I will be standing a sinner before the Lord. आप जानते हैं शाऊल और दाऊद में क्या फर्क था? दोनों परमेश्वर के चुने गए थे। Did you know what is the difference between Shaul and David? They were both chosen by the Lord. पर बाइबल कहती है शाऊल आगे नहीं जा पाया और मारा गया, लेकिन दाऊद एक ऐसा राजा था। And we know the Bible says that Shaul couldn't go ahead because he was such a king. और जो दाऊद था वो 70 साल का होके रिटायर होके परमेश्वर के पास गया। And David, he was 17-year-old. He got retired and then he went to the Lord. दोनों ने गलतियां की हैं, They both made mistakes. लेकिन क्यों शाऊल जो था वो अपनी जर्नी को, अपनी बुलाहट को कंटिन्यू नहीं कर पाया Why Saul couldn't continue his journey, his calling, और दाऊद कर पाया? and why David could do it? दोनों में एक डिफरेंस था। There is a difference between them. जो शाऊल था The Shaul, उसे परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने की आदत नहीं थी, and Shaul didn't have habit of being in the presence of the Lord. लेकिन जो दाऊद था But David, उसके अंदर एक हैबिट थी परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने he की। had a habit to stay in the presence of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. पहला शमूएल 16 उसकी 14 आयत में लिखा, 1 Samuel chapter 16 verse 14 says, उसमें लिखा, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। but the spirit of the Lord departed from Saul, and the evil spirit came. The Lord troubled him. जब परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में नहीं होता तो शैतान अटैक करते हैं। When the spirit of the Lord is not in your life, Satan attack in your life. और बाइबल कहती है आप परमेश्वर की आत्मा की प्रेजेंस में रहने के लिए ही बनाए गए थे। God has created you that you may stand and remain in the presence of the Lord. जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में नहीं होती तो शैतान उसका फायदा उठाते हैं। If there is not a presence of the Lord in your life, there come Satan always take advantage of in your life. भजन संहिता 91 उसकी एक आयत में लिखा, Psalm 91 verse 1 says, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा those who dwell in the house of the Lord, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। and he will take refuge on the Almighty God. अगर आप इसे हिब्रू भाषा में पढ़ेंगे तो If you read the same thing in a Hebrew language, तो वहां पे लिखा बैठने का मतलब है यशब। and it says when you sit, it means yeshub, यशब का मतलब and yeshub means, उस स्थान पे बैठना and the place where to sit there, जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। and the place which God has appointed for you. परमेश्वर ने आपको एक पास्टर ठहराया, God has appointed a pastor, अपोस्टल ठहराया, apostle, विश्वासी ठहराया। believer, उस जगह पे खड़े रहना, and you may have to remain there जैसे रूत खड़ी रही। as a Ruth stand there. रूत की जो सासू माँ थी Ruth, mother-in-law, उसने कहा तू चली जा, she said, go away from me. पति मर गया, Your husband died, मेरा पति मर गया, my husband died, सब मर गए, everyone died, तू चली जा। you should go. पर बाइबल कहती है, Bible says, उसने कहा she said, तेरा परमेश्वर your God, मेरा परमेश्वर my होगा, God, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, your people will be my मैं people. वापिस नहीं जाऊंगी। I'm not going to go away. अगर हम ध्यान से बाइबल को पढ़ें, If you read Bible carefully, उसने परमेश्वर की प्रेजेंस को चुना। she chose the presence of the Lord. वो वापिस जा सकती थी, She could have gone back. शादी कर सकती थी, She could have married. आराम से जिंदगी बिताती। She could have lived happily. कोई भी जवान विधवा नहीं रहना चाहता। No young woman want to stay a widow. उसे मालूम था कि मैं वापिस जाऊंगी तो मुझे पति मिलेगा, She know if I go back, I'll find a husband. पर परमेश्वर नहीं मिलेगा। But Lord, she will not find a God. उसने परमेश्वर की प्रेजेंस को चुना। She chose the presence of the Lord. उसने ये चुन लिया मैं प्रभु की हजूरी में रहूंगी, She said, I will stay in the presence of the मुझे Lord. अपनी सास को पालना होगा, I want to take care of my mother-in-law. दुख उठाने होंगे, I have to take a trouble. I ऐसी जिंदगी बितानी होगी। have to live a life. पर बाइबल कहती है But Bible says, जब उसने परमेश्वर की प्रेजेंस को चुना, when she chose the presence of the Lord, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में बोअज को भेजा God sent a burden in her life. और उससे दाऊद पैदा हुआ। And God sent a Boaz in
in our life, and there उसी के वंश से यीशु मसीह पैदा हुए, through him Jesus उसी came. के वंश से आप और मैं पैदा Through his हुए। genealogy, you and I came. एक व्यक्ति जो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने का फैसला कर रहा है, आप उसका इफेक्ट देखो कहां जा The रहा है। person who wants to stay in the presence of the Lord, you can see the effect in his life. हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।